Yeah, so hi guys, this is Navdeep here. This is my another lecture on world history component that we have been doing. And in this video lecture, I will cover remaining part of French Revolution. I just felt that there is a need to study the military causes of French Revolution. What were the military causes? Though it has been discussed, some parts have been discussed, but I will write it again in as in terms of an answer. Then we will study the rise of Napoleon, how Napoleon rose to the high positions despite coming from the third estate. Then policies of Napoleon. Okay. And then we will study in detail France and neighbors. Okay. What was the relationship between France with its neighbor country, especially Austria, Prussia, Britain, and Russia? Okay. And also in this video lecture, we will study about the European coalitions that will form because just to stop Napoleon and the policies of Napoleon, we can say it was formed to stop the spread of French Revolution in their countries. Okay, so let us just look at the European at that time. Okay, European at that time was mostly monarch. Okay, French Revolution was the first such case to establish a responsible government, a republic in the Europe. Though till 1800 it didn't succeed well. Okay, till 1800 it didn't succeed. So the main reason why it didn't succeed was because the French Revolution. After French Revolution, the political parties split into Jacobians and the non-Jacobians, as I say, and they wanted different type of government administration in the France. Some wanted complete republic, some wanted monarchical constitution, constitutional monarchy, I can say. So that is why they didn't reach a consensus till 1800. So when you are not deciding what to do, what will be the future government of France will look like, what happens? There are turbulence. What are the turbulence? Economy will go down. Your relations with the neighboring countries will go down because there will be no definite foreign policy. There will be unemployment, high scale unemployment, and the most important thing is the industrial revolution in France was very late. Okay. So France, no, there is no doubt that the France did a great thing, a remarkable thing by overthrowing monarchy. But till 1800, there was no consensus on what the future government of France will look like. Okay, this is about me. So first we will study the French Revolution causes due to military. What are the military causes? Why army supported French Revolution and wanted republic? Okay. The thing is that in the American War of Independence, as we have studied, it was the French soldiers and French weaponry that helped Americans to defeat Britain. From here started a rivalry between we can say another thread was added to the rivalry between France and Britain. Okay. But the soldiers, those who fought there in America, wanted the same ideas for which they fought in America to be incorporated in their hometown in France. Okay, Britain was a monarchy. Okay, Austria, neighbor, was monarchy. Prussia was a monarchy. Prussia is the old name for Germany, and Russia was a monarchy. So when such ideas were getting absorbed in France, the ideas of liberty, ideas of freedom of expression, equality, fraternity, somehow, what happened? These felt that this is endangering their position because these were constitutional, they were monarchy there. So the soldiers, those who fought on another land, that is America, wanted same to be happen in France. That is why when the revolution happened, they supported the leaders, they supported the National Assembly, they supported the declarations they made. Okay, and one important such general who fought in America and was an important member of French Revolution was General Lafayette. Okay.
Another reason was non-payment of salaries to soldiers. As I told you, under Bourbon dynasty, Louis XVI, the France was facing economical crunch. Because why? We did it in the last class also. Because the first estate, the second estate were not paying any taxes. All the taxes was being paid by the third estate. But it was insufficient. Why? Because they held only 10% of the wealth. Rest 90% of the wealth was held by the first and the second estate. So that when the tax slab is narrow, the tax collection will be narrow. Okay, that is why that Estates General were established and all other events that happened were discussed in the last lecture. So this was the main reason. Another was that soldiers were mostly from the third estate and couldn't reach high ranks. So these soldiers couldn't reach high ranks like general, major, left because they were from the third estate. Soldiers from the second estate reached the high ranks, and Napoleon was one such soldier who was from the third estate. Okay, are we clear with the causes for the French Revolution due to military? Okay. Now, second thing is that the first European coalition. What do you mean by European coalition? European coalition means all the European countries that collaborated to fight France, to defeat France, so that the idea of French Revolution doesn't enter their country. It doesn't influence their country. Okay, and who were the neighbors of this France? Neighbors of France were Austria, Prussia, Austria, and not immediate but far was Russia. Italy was not a nation yet. Please note it down. Italy was not a sovereign nation then. Okay, Italy was. There were just Italian speaking people. There was no Italy. Similarly, there was no Poland. There were Polish speaking people. So here was Naples, Sicily, okay, territories like that. And there was Rome, but these were independent kingdoms. Naples was ruled by the King of France, okay, Bourbon dynasty. That we will do later. But Prussia, Austria, Russia, and Britain here didn't want this French Revolution to succeed because the ideas were like the wildfire. If they enter their country, the ideas of liberty, equality, eco status, that will suddenly harm the interests of this monarchy. Okay, so there were total 4 wars against the France. The first war was that we studied in the previous lecture also was by the Austrian Prussia. Why? In 1792 to 1797, the peak of this French Revolution, they wanted that Louis XVI is again proclaimed as the king. Okay, that is why they attacked France. But the Louis XVI was caught and later tried and later he died. Okay, the thing is that Napoleon played an important role in defeating both the powers. Okay, here Napoleon, the people came to know about a name called Napoleon, who played a vital role in defeating both the powers like Austria and Prussia. And now, why the powers like Austria and Prussia were lost? Why the combined army lost? Because there was no coordination. Both were attacking on their independently. Okay, since there was no coordination, it was easy for the France to attack them. So first coalition, European coalition, 1792 to 1797, contained of Austria and Prussia, and they were defeated by France. Napoleon played a vital role. Okay. In 1795, in the last lecture I also discussed, a court of directory was formed. Okay. What was this court of directory? Since I told you there was no consensus on what the future administration will look like, whether we will have a constitutional monarchy, whether we will have a republic, there was nothing clear. Okay, it all was in chaos, and suddenly what the National Assembly does, it designates 5-member court of directory. Okay, and they had many
problems ahead of them, like unemployment. Still, there was no industrial revolution in France. Okay, economic slowdown, and they didn't know where to start. Their policies were not clear. And what happened in 1795? Only there was assassinated attempt on these five members. That was stopped by Napoleon. Thus, Napoleon again became popular. Okay. In 1799, it was 10 years after French Revolution. Now, what has happened? That in Egypt, there were some French colonies, and those French colonies were attacked by Britain. So, this court of directory and military with consensus sent Napoleon to Egypt to save the territories, French colonies. He defeated the Britons there. Okay, he defeated the Britons there, and Napoleon thus became more and more popular. But when he returned home in 1799, that is 10 years after the French Revolution, there was still no consensus on the ruling. Okay, it was still in chaos. What happened in 1799 on seeing his popularity and the uprising against the Directory? Napoleon proclaimed himself as a leader, but he didn't call himself as a president or prime minister. What he called himself as consul. So what do you mean by consul? Consul means Pradhan Sevak. In Hindi we can say it Pradhan Sevak. So he declared himself as the consul of France. Okay. Now once Napoleon is proclaimed as consul, there are certain resolutions that he takes, certain decisions that he takes. He takes certain vows. First vow that he takes, that he will save France from external attacks. He had already proved his military might previously, whether it's Egypt, whether it's first European coalition, and whether it is fight against the Britain in Egypt. And the second one is that he will take certain economical measures, which include rapid industrialization, so that people get job, there is money in the hand, and the inflation is somehow controlled. Because wherever there is a chaos in the government, there is an inflation that the common people feel. Okay. Now, one thing that he decided, that he vowed, really alarmed his neighbors. It was that he wanted to spread the ideas of fundamental rights to the other parts of the Europe. Thus, the monarchies wanted to overthrow him. अब आप एक बात यहां पर देखिए कि जब ये बात करता है कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज को बाकी यूरोप में फैलाएगा, और जो मोनार्कीज है वो वहां पे क्या हो जाती है, ऑफ कोर्स उनको एक थ्रेटन लगता है. लेकिन जब ये बात करता है कि मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन यूरोप के बाकी पार्ट्स में फैलाऊंगा और फ्रांस का जो है काउंसिल यही है, तो कहीं ना कहीं ये बाकी जो फ्रांस का जो यूरोप का पार्ट्स है उनको एनेक्स करना चाहता है अंडर द एव ऑफ दिस फ्रेंच रेवोल्यूशन. यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम पे ये जो बाकी यूरोप की टेरिटरीज हैं उनको कहीं ना कहीं एक्वायर करना चाहता है. ओके. अब 1792 से लेके 1882 इसमें सेकंड वॉर ऑफ कोएलिशन हो जाती है. अब इस सेकंड वॉर ऑफ कोएलिशन क्या होती है? ब्रिटेन को नेपोलियन हरा के आ चुका था किसमें? इजिप्ट में. तो ब्रिटेन अब मिल जाता है प्रूशिया के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ, और रशिया ने आउटसाइड अटैक करता है. ओके. अब ये फिर से एक अनकोऑर्डिनेटेड अटैक था. नेपोलियन 3 कंट्रीज को हरा देता है और एक बार फिर से उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. अब वो फिर से क्या हो जाता है? अनडिफीटेड. ब्रिटेन क्या करता है इसी टाइम पे? ब्रिटेन को जब पता लगता है कि हम इसे नहीं हरा सकते, वो ट्रीटी ऑफ एमन्स साइन करता है फ्रांस के साथ. ट्रीटी ऑफ एमन्स रिकॉग्नाइज करता है नेपोलियन को एज द रूलर ऑफ फ्रांस. ओके. अब जैसे ही ब्रिटेन को नेपोलियन हराता है, ट्रीटी ऑफ एमन्स साइन होती है, तो नेपोलियन मौका देखता है कि यार इससे तो मेरी पॉपुलैरिटी अभी तो बहुत हाई पे, तो वो अपने आप को कॉन्सल फॉर लाइफ डिक्लेयर कर देते हैं. ओके. वो अपने आप को कॉन्सल फॉर लाइफ डिक्लेयर कर देता है.
अब एक चीज आप नोट करिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो थी वो आई थी अगेंस्ट मोनार्की। ओके, तो कहीं ना कहीं अगर ये अपने आप को डिक्लेयर कर रहा है कि मैं काउंसिल फॉर लाइफ हूं, तो कहीं ना कहीं ये मोनार्की वाला जो रूल है फॉर लाइफ कहीं ना कहीं उसी ओर बढ़ रहा है। तो फर्स्ट टाइम जो है लोग इसको क्रिटिसाइज करने लगे, लेकिन क्योंकि ये जीत के आया हुआ था, इसने ब्रिटेन को हराया हुआ था, तो मेजॉरिटी इसको सपोर्ट कर रही थी। लेकिन थोड़ी बहुत वॉइसेस तो उठती ही रहती हैं। यही एक बेस्ट मौका होता है, अगर आप किसी कंट्री को कोई रूलर हरा रहा है तो वो अगर इलेक्शन करवा रहे हैं तो ऑफकोर्स जो आपकी पॉलिटिक्स होती है वो बेंड होती है उस टाइम ज्यादातर उस लीडर को सपोर्ट करने में, एंथुसियाज्म बहुत होता है। तो अगर नेपोलियन अटैक के बाद इलेक्शन जीत जाता है, ओके, अगर उस टाइम पे वो इलेक्शन करता तो वो इलेक्शन जीत जाता, तो ये क्या करता है, ये एक प्लेबिसाइड करता है और ये प्लेबिसाइड ये जीत जाता है। इस प्लेबिसाइड के बाद ये अपने आप को डिक्लेयर करता है काउंसिल फॉर लाइफ। ओके, अब मेरा कहने का मतलब ये कि क्योंकि ये जीता हुआ था इसलिए प्लेबिसाइड लोगों ने सपोर्ट कर दी ओपन हार्टेडली। ऐसा ही हुआ अगर आप पुतिन देखेंगे, पुतिन ने जब क्रीमिया एनेक्स किया, रशिया ने अंडर पुतिन जब क्रीमिया एनेक्स कर लिया, तो नेक्स्ट डे जो पुतिन ने किया वो क्या था, उसने इलेक्शन कॉल कर लिया, वो जीत गया। ओके, अब नेपोलियन जो था वो खाली नेपोलियन काउंसिल नहीं था, वो काउंसिल फॉर लाइफ था, वो लाइफ के लिए जो था काउंसिल बन चुका था। ओके, लेकिन पहला क्रिटिसिज्म किस लिए आया हुआ था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडियाज थे कि मोनार्की नहीं होनी चाहिए, पीपल की से होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसे हार्म हुआ था। ओके, अब आगे हम देखते हैं। अब थर्ड कोalition बनती है 1805 से लेके 1807। नेपोलियन अभी तक जो है अनडिफीटेबल है। ओके, अब नेपोलियन 1805 में फिर से दौड़ाता है कि मैं जो अपने जो फंडामेंटल राइट्स के जो मेरे आइडियाज हैं उनको मैं पूरे यूरोप के जो बाकी नेशन से और वहां तक फैलाऊंगा। अब इस बार जो है इस थर्ड यूरोपियन कोalition में ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, स्पेन और प्रूशिया ये फ्रांस पे अटैक नहीं करती हैं, ये फ्रांस पे अटैक नहीं करते, फ्रांस इन तीन पे अटैक करता है। ओके, ये फ्रांस पे अटैक करता है। ऑस्ट्रिया में और स्पेन में और प्रूशिया में जो उस टाइम पे जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रही थी, ऐसे उनको सपोर्ट करना शुरू कर दी। अब इन्हें लगा था कि मैं अटैक करूंगा क्योंकि मेरी एक मिलिट्री माइट है, एक कॉन्फिडेंस आ गया था नेपोलियन को, मैं तो मिलिट्री माइट हूं, मेरे को तो कोई हरा नहीं सकता। तो ये अटैक करते हैं ब्रिटेन के ऊपर। ब्रिटेन के साथ इनकी वॉर होती है, बैटल ऑफ ट्रैफलगर इज इन स्पेन। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम आ जाती है, नेपोलियन ने अभी तक जितनी वॉर्स जीती हुई थी वो सबकी सब लैंड पे जीती हुई थी। सो नेपोलियन वॉज ए एबल जनरल बट ऑन लैंड। लेकिन यहां पे था इंग्लिश चैनल बीच में। अब नेपोलियन वॉज नो superior, or we can say he was not no expertise in नेवी। तो ब्रिटेन की नेवी वैसे भी बहुत ज्यादा सुप्रीम थी, तो ब्रिटेन की नेवी जो है नेपोलियन को हरा देती और नेपोलियन को जो है ये फर्स्ट डिफीट मिलती है। कहां पर, थर्ड कोalition के टाइम ब्रिटेन से। लेकिन कुछ हद तक जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो ब्रिटेन जो उस टाइम पे जो आपका जो इटली था, इटली एज ए नेशन नहीं था, देयर वॉज नो कंसेप्ट ऑफ इटली एज ए नेशन। तो था क्या क्या वहां पे, यहां पर क्या था, सिसली था, नेपल्स था, यहां पे सिसली था, दो जगह थी, यहां पे आपका रोम था। तो क्योंकि ये सिसली और नेपल्स जो थे, ये दोनों के दोनों जो एंशियंट आपका जो एंशियंट फ्रांस है, दोनों के दोनों उसकी अंडर थे, अंडर बोर्बन डायनेस्टी। तो नेपोलियन इनको इसी अटैक में फिर से जो है कॉन्कर कर लेता है। ओके, अब यहां पे आपका जो ये फोर्थ टेरिटरी थी वो थी वेनेशिया, और यहां थी लंबार्डी, वेनेशिया, नेपल्स एंड सिसली। अब नेपोलियन क्या करता है, ये जो नेपल्स है, नेपल्स और सिसली में ये कंबाइंड था, यहां पे अपने ब्रदर जोस बनपते को एज ए रूलर बना देता है कॉन्कर करके। ओके, तो ये कहीं ना कहीं नेपोटिज्म की शुरुआत होगी। ये तो वही मोनार्की कहा गया जिसके खिलाफ फ्रेंच रेवोल्यूशन थी, कि ये अब अपने फैमिली मेंबर्स को जो है
रूलर बना रहा है डिफरेंट टेरिटरीज को, तो कहीं ना कहीं इसका फिर से क्रिटिसिज्म होने लगा। अब एक बार जो है ये हार चुका था ब्रिटेन से, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ब्रिटेन से ये हार चुका था। अब जब ब्रिटेन से ये हार चुका था, फॉर एग्जांपल ये आपका फ्रांस है, ये ब्रिटेन है, ओके, ये प्रूशिया है, जस्ट दिस इज अ रफ मैप, ओके, ये आपका ऑस्ट्रिया है, और ये आपका रशिया है, और ये आपका स्पेन है। स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया एंड रशिया, ओके। अब ये यहां ट्रैफलगर में हार चुका था, फ्रांस हार चुका था ट्रैफलगर में। अब जो नेपोलियन है ये इकोनॉमिक तरीका पकड़ते हैं, ये पकड़ते हैं इकोनॉमिक तरीका। ये कहते हैं कि अगर मैं क्योंकि ब्रिटेन की नेवी जो है वो बहुत ज्यादा सुपीरियर और मैं उसे हरा नहीं पा रहा हूं, तो मैं इकोनॉमिकली मैं यूरोप को हराऊंगा ट्रैफलगर की डिफीट के बाद। तो वो क्या कहते हैं, वो एक सिस्टम लाते हैं जिसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल सिस्टम, ओके। वो एक इकोनॉमिक तरीका लाते हैं ब्रिटिश को काउंटर करने का, जिसे कहते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। फ्रांस क्या कहता है, फ्रांस जो अपने नेबर्स हैं, चाहे आपका प्रूशिया है, आपका ऑस्ट्रिया है, आपका रशिया है या आपका स्पेन है, उनको कह देते हैं कि आप जो है ब्रिटेन से कोई भी सामान नहीं लेंगे, स्पेन का ब्रिटेन का आप कोई भी गुड नहीं लेंगे। आप गुड कहां से लेंगे, गुड्स जो भी आपको चाहिए आप गुड्स लेंगे फ्रांस से, ओके। लेकिन इसमें एक इशू था, इशू ये था कि जो फ्रांस था, फ्रांस के पास उस टाइम पे इतना ज्यादा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं थी, ओके। तो गुड्स जो है पूरी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को सप्लाई नहीं हो पाए, जिसके करके इन्फ्लेशन हो गई। अब जब इन्फ्लेशन हो गई आइटम्स की, तो रशिया के जो उस टाइम के लीडर थे अलेक्जेंडर जार रूलर जो थे अलेक्जेंडर, वो इस कॉन्टिनेंटल सिस्टम से क्या होते हैं, इसको छोड़ देते हैं। कहते हैं कि मैं आपके इस कॉन्टिनेंटल सिस्टम का सपोर्ट नहीं करता, मेरे यहाँ तो किल्लत पड़ रही है, इन्फ्लेशन हो चुकी है, और 2-3 महीने बाद वहां पे विंटर्स आने वाले थे, उनको स्टॉक चाहिए था, ओके। तो ये ब्रिटेन से हाँ कर देते कि हम ब्रिटेन का गुड्स में ले लूंगा। अब नेपोलियन इससे अपसेट हो जाता है, और नेपोलियन प्लान करता है कि मैं रशिया पे अटैक करूंगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको कॉन्टिनेंटल सिस्टम समझ आ गया होगा कि फ्रांस ये कहता है कि ब्रिटेन का गुड्स कोई भी नहीं खरीदेगा, जिसको भी गुड खरीदना है, सबके सब जो गुड्स है वो कहां से खरीदेंगे, वो फ्रांस से खरीदेंगे, ओके। जितना भी गुड खरीदेंगे वो सबके सब फ्रांस से ही खरीदेंगे। लेकिन फ्रांस क्योंकि इतनी ज्यादा प्रोडक्शन थी नहीं, तो क्या हो गया, यूरोप पूरे में इन्फ्लेशन आ गई, कॉस्ट बढ़ गई। रशिया जिसमें विंटर्स आ रहे थे 2-3 महीने बाद, उसने उसको गुड्स बहुत ज्यादा चाहिए थे, तो उसने कॉन्टिनेंटल सिस्टम से अपने आप को छोड़ दिया, उसके रूलर जार अलेक्जेंडर ने। और फ्रांस का नेपोलियन ये कहता है कि मैं रशिया पे अटैक करूंगा, ओके। तो यहां तक क्लियर हो गया। तो अब फ्रांस प्रिपेयर करता है रशिया के साथ वॉर। अब नेपोलियन जो कि आपको पता है पहले ही ब्रिटेन से हार चुके थे ट्रैफलगर में, अब वो ट्राई करते हैं कि किसी तरीके से, किसी भी तरह से मैं जो हूं रशिया को हरा के आ जाऊं, ताकि मेरी सुपरमेसी बन जाए। यहाँ पे प्रूशिया में कुछ पॉलिश स्पीकिंग पीपल रहते थे, तो नेपोलियन क्योंकि बहुत ज्यादा कैरिज्मेटिक था, वो इन पॉलिश स्पीकिंग पीपल को कहता है कि आप मेरे को ज्वाइन कर लीजिए, मेरे को सपोर्ट दीजिए, हम रशिया को हराने चलते हैं, बदले में मैं आपको यहाँ पे पोलैंड बना के दूंगा, जहां मॉडर्न डे पोलैंड है। सिमिलरली ये से जो इटालियन स्पीकिंग पीपल थे, उन्हें कहता है कि आप आ जाइए, मैं आपको कुछ टाइम में जो है एक इटालियन लैंड बना के दूंगा। एक चीज नोट कर लीजिए कि स्पेन आपका इटली के जो पार्ट्स है, जो जैसे मैंने बताया था सिसिली एंड स्पेन, सिसिली और आपका जो नेपल्स था, ये सब के सब जो थे ये पहले से ही बर्बन यूनिवर्सिटी के अंडर थे। बाद में ये इंडिपेंडेंट किंगडम्स बन गए थे, लेकिन नेपोलियन जानता था कि इन्हें कैसे अपने साथ मिलाना है, ओके। तो ये फर्स्ट डिफीट होती है। अब क्या हो जाता है कि
रशिया को अटैक करने के लिए 2 लाख सोल्जर्स जो है नेपोलियन भेजता है विंटर से 2 वीक्स पहले। उसे लग रहा था कि रशिया को आराम से आ जाएगा, लेकिन रशियन जार रूलर जो था अलेक्जेंडर टू बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड था। उसे पता था कि अब इट्स नाउ और नेवर। साथ में उसको सपोर्ट कर रहे थे ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया और ब्रिटेन भी। तो ऐसा कहा जाता है कि खाली 80,000 सोल्जर्स जो है वो रिटर्न हुए 2 लाख में से। और दिस वाज द सेकंड डिफीट। दिस वाज द सेकंड डिफीट। अब क्या होता है कि जब एक बार ये रशिया इसका एक्सपीडिशन खत्म हो जाता है फ्रांस, तो इससे अब 4 वे अटैक मिलता है। और ये जो अटैक जब होता है ये कोऑर्डिनेटेड होता है, यानी रशिया, क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन सबके सब जो है एक साथ फ्रांस पे अटैक करते हैं। ओके, फ्रांस पे अटैक करते हैं। अब जब ये अटैक करते हैं तो नेपोलियन जो कि पहले ही सोल्जर्स हार के आ चुका था, लोग बहुत ज्यादा ऐसे डिस्कम्फर्ट थे, तो अब ये क्या करते हैं, ये सपोर्ट जो है कहीं ना कहीं एक लोगों के बीच का भी जो सपोर्ट होता है वो इसके लिए कम हो चुका था, नेपोलियन के लिए कम हो चुका था। अब लोगों की सपोर्ट में इंथुसियाज्म जो है थोड़ा सा कम है, सपोर्ट थोड़ा कम है, एक्सटेंट थोड़ा कम है, तो नेपोलियन ने वहां हार गया। अब ये 4 कंट्रीज जो है नेपोलियन को मारते नहीं है, नेपोलियन को ये लोग एक आइलैंड पे भेज देते हैं। ओके, एक आइलैंड पे भेज देते हैं स्पेन के पास, उसे बोल रहे तू वहीं पर रह, अपना रिटायरमेंट एंजॉय कर, और इतनी देर में वहां मोनार्की रीस्टेट कर देते। ये 1812 में होता है। जब मोनार्की रीइंस्टेट होता है तो ये लोग क्या करते हैं, जो तब की बोर्बन डायनेस्टी थी और जो उसके आपके किंग लुई 16 के जो सक्सेसर थे उनको किंग बना देते। तो कुछ टाइम के लिए वहां पर मोनार्की फिर से रहती है, लेकिन क्योंकि अभी भी वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन क्लियर नहीं थी और मोनार्की को पता था कि हम एक बार जो है हमारे ही रूल के करके हम बाहर हुए हैं, तो दे वांटेड टू प्ले सेफ। दे समहाउ प्लेड इंटरमिक्स विद द थर्ड स्टेट टू सम एक्सटेंट। वो बातें भी उनकी मानते थे, कहीं ना कहीं टैक्सेस जो है उसको ईज कर दिया गया था, सीजन की कंडीशन की इम्प्रूव हो रही थी। और जो थर्ड स्टेट थी आपकी, थर्ड स्टेट में एक नई क्लास जो थी वो आ रही थी जिसे आप कहते हैं मिडिल क्लास। थर्ड स्टेट में ही एक नई क्लास आ रही थी जिसे मिडिल क्लास कहते हैं। अब मिडिल क्लास ठीक है, ये बेसिकली वो टीचर्स थे, डॉक्टर्स थे, आपके रिच मर्चेंट्स थे या लायर्स थे, तो ये इमर्ज हो रही थी थर्ड स्टेट। तो अगर गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी जो थी वो ईज करती थी थर्ड स्टेट के रिलेटेड, चाहे उनको टैक्स बेनिफिट्स हो, चाहे उनको प्रमोशन हो, चाहे उनकी एजुकेशन में उनकी इन्वायरमेंट हो, गवर्नमेंट जॉब्स में उनकी इन्वायरमेंट हो, तो कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा बेनिफिट था वो मिडिल क्लास, थर्ड स्टेट का मिडिल क्लास। तो कई बार कहा भी जाता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है उसने कहीं ना कहीं जो है फ्रांस की जो थर्ड स्टेट की मिडिल क्लास है इसको सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। ओके, क्योंकि पीजेंट्स की कंडीशन अगर आप देखेंगे तो उसमें कुछ चेंज नहीं थी। पीजेंट की कंडीशन वैसी ही थी जैसी पहले थी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आई। लेकिन अगर किसी की कंडीशन थोड़ी ठीक हो रही थी आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो वो थी मिडिल क्लास। भले ही पूरे फ्रांस में पॉलिटिकल टर्माइल अभी भी चल रहा था, देयर वाज नो स्टेबल गवर्नमेंट, इकोनॉमी आपकी नीचे जा रही थी, आपकी इकोनॉमी भी नीचे जा रही थी, आपकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं ये मेडिकल जो आपकी मिडिल क्लास है ये कहीं ना कहीं एक चीज थी जो दोनों में ब्लूम कर रही थी। अब ये मिडिल क्लास ब्लूम क्यों कर रही थी, इसका भी एक रीजन है। तो रीजन ये कि जो भी पॉलिसी बन रही थी तो जब वो फिल्टर होकर नीचे तक जाती थी तो लार्जर पार्ट जो उनका था वो मिडिल क्लास को ऑटोमेटिकली मिल जाता, क्योंकि एक ये एजुकेटेड थे, दो इनके पास रिसोर्सेज, तीन ये अर्बन एरियाज में रहते थे। जो पीजन्स थे वो तो रूरल में रहते थे, उन तक ये ट्रिकल डाउन होकर जो इफेक्ट था फ्रेंच रेवोल्यूशन का ये काफी टाइम तक नहीं पहुंचा। उन्हें बस इतना पता था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो में राइट्स थे वो मिलेंगे, जो पूरे वर्ल्ड को पता था कि एक इक्वालिटी आई हुई है,
लेकिन वो भी सिर्फ अगर देखा जाए तो कहने में, अगर आप ऑन द रिकॉर्ड देखेंगे तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट अभी भी फेवर हो रहे थे, लेकिन जो थोड़ा बहुत बेनिफिट थर्ड स्टेट में मिल रहा था वो भी मिडिल क्लास को मिल रहा था। ओके, तो कहीं ना कहीं पीजन्स की जो हालत थी वो अभी भी वही थी जो पहले थी, उसमें कोई भी चीज नहीं थी। अब नेपोलियन के हारने के बाद, उसे स्पेन एक आइलैंड में भेजने के बाद जब मोनार्की रिइंस्टेट की जाती है, एक गवर्नमेंट फिर से, गवर्नमेंट तो नहीं कह सकते, एक रूलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनती है जो रूल करती है, तो कहीं ना कहीं 1812 से 1814 तक वो जितने भी कदम लेते हैं, क्योंकि मोनार्की चाहता है कि हम लॉर्जर टाइम तक टिके रहें, कि अब हमारा ही रूल चले, जो हमारे साथ हो गया वो दोबारा रिपीट ना हो। ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, ये भी यही चीज, सेम चीज वो भी चाहते हैं कि एक स्टेबल कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टेबल मोनार्की वहां पर है। अगर वहां पर स्टेबल मोनार्की रहेगी तो हम अपनी कंट्रीज में बता पाएंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आई वहां पे फ्रांस में, ये फेल होगी। माइट इज राइट, जो डिवाइन राइट है वही एब्सोल्यूट, इट इज करेक्ट वे। तो इसलिए वो भी इनको सपोर्ट कर रहे थे, जो आपके ऑस्ट्रिया थे इसको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन हाँ, अगर हम कहीं ना कहीं एक लार्जर एस्पेक्ट में देखें कि राउंड आपके 13 ईयर्स हो चुके हैं 1812 में फ्रेंच रेवोल्यूशन को, तो क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो फुल्ली आइडियाज थे वो इनैक्ट हुए? तो मैं यही कहूंगा कि वो इनैक्ट नहीं हुए। खुद नेपोलियन जो ये कहता है कि मैं पूरे फ्रांस, पूरे यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज जो उसको फैलाऊंगा, उसे स्प्रेड करूंगा, वो खुद कहीं ना कहीं नेपोटिज्म की बात करता है, वो खुद कहीं ना कहीं अपने आप को लाइफ काउंसिल अपॉइंट कर देता है, वो खुद ना खुद कहीं डिसीजंस लेता है लोगों की फीलिंग्स के साथ, लोगों को इमोशनली जब वो हाई होते हैं तब। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज जो उसे पूरी दुनिया में स्प्रेड कर रहे, कहीं ना कहीं वो भी उसे वहां पर इनेक्ट नहीं कर पा रहे। ये एक, जिससे अभी तक जो अगर आपको वैल्यूएट करना होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन का, तो वो ये है, क्योंकि आपकी अभी तक स्टेबल गवर्नमेंट कहीं बनी नहीं। जैसे वहां पर बात की गई थी कि रिपब्लिक होगा, वोटिंग राइट्स होंगे, और अगर आप देखेंगे अभी तक जो आपका वोटिंग राइट था वो मेन के पास, वुमेन को, पीजेंट्स को अभी भी जो है वोटिंग राइट्स नहीं। तो अगर वोटिंग राइट्स आए भी थे वो सिर्फ मेन के पास, तो इक्वलिटी कहाँ है? अगर आपकी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो तीन चीजों पे हुई, सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, तो सोशल इक्वालिटी तो आई नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड जो स्टेट थे अभी भी वो फेवर्ड थे, और आपकी थर्ड स्टेट में अगर कोई सबसे ज्यादा घी खा रहा था तो वो मिडिल क्लास। इकोनॉमिक इक्वालिटी भी अभी आई नहीं थी, क्योंकि जो टैक्स के बेनिफिट्स मिल रहे थे वो मैक्सिमम जो मिडिल क्लास लेके जा रहा था। पीजेंट्स वगैरह का वही हाल था, वो रूरल एरियाज में रह रहे थे, ड्राउट, सीवियर ड्राउट और फेमाइंस अभी भी कंसिस्टेंट है वहां। ओके, अब जब पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करें तो पॉलिटिकल इक्वालिटी तो नेपोलियन ने ही विद होल्डिंग अपने आप को काउंसिल फॉर लाइफ अपॉइंट कर दिया उसने। तो ये अभी तक एक सेपरेट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, एवेल्युएट द जर्नी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड क्रिटिकली एग्जामिन। डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, अगर आपको क्रिटिकली एग्जामिन या एवेल्युएशन पे आता है क्वेश्चन, तो आप उसमें ये सब चीजें लिख सकते हैं कि अभी हम फोर्थ कोalition पे पहुंच चुके हैं, नेपोलियन हार चुका है, उसे भेज दिया गया स्पेन के चैलेंज, तो कोalition तो वापस आपकी मोनार्की तो वापस आ गई। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन कहीं ना कहीं फेल होते हुए दिख रहा है। लेकिन भले ही अब चलिए मोनार्की का डायरेक्ट जो है कॉन्टैक्ट है नहीं इनके साथ, मोनार्की अभी भी अपने आप को दूर रख रहा है, मोनार्की कह रहा है कि हम दूर हैं। ओके, ये एक रीजन है कि अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन को स्टडी करेंगे अच्छी तरह, तो कहीं ना कहीं अभी भी एक केओस की कंडीशन बनी हुई है। ओके, 1814 में, क्योंकि नेपोलियन तो था, नेपोलियन ब्रिटेन से हार चुके थे, मोनार्की वापस आ चुकी थी, खुद वो स्पेन बैठे हुए थे, वहां से वो स्केप कर जाते स्पेन और पेनिट्रेट कर जाते आपके फ्रांस में। यहाँ पे आके वो सोल्जर के साथ फिर मीटिंग करते हैं, कहते हैं मेरे साथ जुड़ो, हम
मोनार्की को हटाएंगे। अब क्या होता है, कुछ सोल्जर्स जो है इनको ज्वाइन कर देते हैं, लेकिन मेजॉरिटी अभी भी जो है यहीं पर रहते हैं, क्योंकि उनको पता था कि लास्ट टाइम जब हमने नेपोलियन को सपोर्ट किया था तो थिंग्स वेंट आउट ऑफ हैंड। नेपोलियन भले ही एबल जनरल थे, लेकिन पॉलिटिक्स प्लस जब आपकी मिलिट्री मिलती है तो कहीं ना कहीं नेपोलियन वहां पे टकरा जाते हैं, डिसीजंस नहीं ले पाते। ओके, जो आपका कॉन्टिनेंटल सिस्टम था उस पर रशिया को अटैक करना, तो जब आपकी खुद इकोनॉमी इतनी रेडी नहीं है, जब आपकी खुद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अभी पूरी हुई नहीं है, तो ये तो बेवकूफ़ी का डिसीजन था। तो अब नेपोलियन की फोर्सेस और मोनार्क की या फ्रांस की जो फोर्सेस है वो मिलते हैं वाटरलू में। ओके, यहाँ पे नेपोलियन जो है वो हार जाता है, उसे सेंट हेलेना के आइलैंड पे भेजा जाता है, यहीं पर वो 1821 में मर जाता है। दिस नॉट 1721, दिस इज 1820। 1820 को आखिरकार यहाँ मर जाता है। ओके, दिस इज व्हाट हैपेंड। ओके, सो दिस इज द जर्नी ऑफ नेपोलियन टिल हियर। ओके, अब मोनार्की तो वहां पे थी टिल 1871। व्हाट वी सी एज द मॉडर्न जो फ्रांस है वो 1871 में कहीं जाके बनता। और ये जो आपकी दो बैटल्स हुई है, एक बैटल ऑफ ट्रैफलगर और बैटल्स ऑफ वाटरलू, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये दो जो बैटल्स है आपकी बार बार इनका जिक्र आता है, क्योंकि ये दोनों जो बैटल्स है आपकी इंडिया में जो आपकी ब्रिटिश कॉलोनीज थी या ब्रिटिश जो आपकी सुपरमेसी थी उसको बढ़ा रहा था विद ईच डिफीट ऑफ फ्रांस। आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो ये दो वॉर्स तो स्टार्टिंग में ही आते, आप जब एंट्री ऑफ यूरोपियन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो दोनों बार बार आते, लेकिन उनका बैकग्राउंड यहाँ पर है मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री। तो यहाँ पे आपका मॉडर्न और वर्ल्ड जो है वो आके कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं सो ब्रिटिश फ्रेंच की दोनों लॉस, बैटल ऑफ वाटरलू, बैटल ऑफ ट्रैफलगर, कहीं ना कहीं ब्रिटिश सुपरमेसी जो है इंडिया में इंक्रीज कर गई, क्योंकि ब्रिटिश के आगे तो कोई कंपटीशन नहीं मिल रहा, एक ही कंपटीशन था फ्रांस का, वो दोनों जब इन बैटल्स में वीक होता गया तो रहा। ओके, अब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को थोड़ा सा एवेल्युएट कर सकते हैं। भले ही मैंने अभी उसे थोड़ा सा एवेल्युएट किया जब मैंने ये कहा कि जो मिडिल क्लास है वो सबसे ज्यादा जो घी था एक फ्रेंच रेवोल्यूशन को वो उससे बना। ओके, अब लेकिन पीजेंट्स को भी ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ, पीजेंट्स को भी बहुत फायदा हुआ। पीजेंट्स को क्या फायदा हुआ कि फ्यूडलिज्म जो है आपका टोटल खत्म हो गया। तो जब आपका फ्यूडलिज्म जो है टोटली अबॉलिश हो गया तो लैंड जो है वो पीजेंट्स को वापस मिल गया। फ्यूडलिज्म तो खत्म हो गया था, लेकिन जो लैंड तब वापस आया था स्टेट के पास वो रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया था। समझ रहे आप, भले ये फ्यूडलिज्म खत्म हो गया था, नोबल्स का राइट ऑन द लैंड खत्म हो चुका था, लेकिन जो लैंड बचा था ये अभी भी पीजेंट्स को वापस नहीं मिला था। ओके, तो यहां पर कहीं ना कहीं पीजेंट्स फिर से फेल हो गए थे, लेकिन पीजेंट्स फ्री हो चुके थे, वो बाकी काम कर सकते थे, लेकिन लैंड उन्हें अभी नहीं मिला। फिर बात मैंने आपको कही कि सोशल इक्वालिटी। इक्वालिटी मैंने आपको कहा कि खाली मैन इक्वल हुए थे, वुमेन को अभी भी जो है इक्वल नहीं माना जाता था मैन के। ओके, और जो आपकी फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो ऑफिशियल्स थे, यानी जो चर्च के और जो आपके नोबल्स पुराने थे फर्स्ट स्टेट, वो अभी भी कहीं ना कहीं टॉप हायर सोशल स्टेटस एंजॉय कर रहे थे। ठीक, अब आप नेपोलियन का एक जर्नी देखिए। नेपोलियन आता है 1799 के क्राइसिस में, खुद को बनाता है कौंसल, प्रधान सेवक, ब्रिटेन को हराता है, प्रूशिया को हराता है, ऑस्ट्रिया को हराता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो खुद को कौंसल फॉर लाइफ कर देता है, कहता है कि मैं कौंसल फॉर लाइफ हूं। फिर बैटल ऑफ ट्रैफलगर, बैटल ऑफ वाटरलू पे हारता है और खत्म। नेपोलियन खुद जब नेपल्स और सिसिली इटली के पास जब कॉन्कर करता है तो अपने भाई को वहां पे
रूलर बना देते हैं। ऐसे ही कहा जाता है जो ऊपर की जो जगह ही थी दो लेफ्टर, वहां पर जब वो जीता तो अपने ही एक रिलेटिव को वहां का रूलर बना देता। तो नेपोटिज्म तो नेपोलियन भी लाया था, कहीं ना कहीं मोनार्क तो वो भी बन चुका था। ओके, अब 1814 में कहीं ना कहीं जो अभी हमने देखा कि 1814 में बैटल ऑफ वाटरलू के बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन कहीं खत्म नहीं हुई। मैंने आपसे ये कहा कि ये 1871 तक चलती रही, जब कंप्लीटली जो आज का फ्रेंच सेटअप है वो जब तैयार हो गया। ओके, सो 1871 में जो है मोनार्की जो है ओवरथ्रो कंप्लीटली की गई। अब jobs to the third estate were taken by educated middle class. FR's French Revolution led by the middle class benefited from the middle class. तो पीजेंट्स को तो है, मैंने जैसा कहा फ्यूडलिज्म बड़ा ही खत्म हो गया फ्यूडलिज्म, लेकिन उन्हें तो लैंड वापस मिला नहीं। लेकिन अगर थोड़ी सी जॉब अपॉर्चुनिटी जो है थर्ड स्टेट को मिली तो वो सबकी सब तो मिडिल क्लास ने ले ली। लेकिन एक जो मैं कह सकता हूं जो सबको जो थोड़ा फेवर मिला, चाहे वो पीजेंट्स हो या मिडिल क्लास हो, वो था अबॉलिशन ऑफ अनइक्वल टैक्सेस। अब अबॉलिशन ऑफ अनइक्वल टैक्सेस का मीनिंग क्या है कि कहीं ना कहीं जो आपका चर्च का और जो स्टेट का टैक्स था, जो सेपरेशन था, वो खत्म हो गया। अब एक ही टैक्स आया, सेम टैक्स जो नेशनल असेंबली ने बात की थी टेनिस कोर्ट में, जो हमने पढ़ा हुआ था कि वी हैव द राइट टू इम्पोज टैक्स ऑन आवरसेल्व्स, तो वो यहां पर आया। सो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि क्रिटिकली इवेलुएट फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसमें उसकी एडवांटेजेस ही है, डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसके साथ आप पीछे का जो है रोल ऑफ नेपोलियन लिख के, जो नेपोलियन का टूर था, तो कैसे वो मोनार्की के इर्द गिर्द ही घूमता रहा, तो इस क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हैं। ओके, अब एक हम थोड़ा सा देख लेते हैं पॉलिसी ऑफ नेपोलियन, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, आपको कहीं ना कहीं डेट क्वेश्चन आ सकता है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पॉलिसीज ऑफ नेपोलियन। ओके, तो सबसे पहले नेपोलियन के हम देखेंगे पॉलिटिकल पॉलिसीज। पॉलिटिकल पॉलिसीज क्या थी? नेपोलियन फेवर्ड द ओवरथ्रो ऑफ मोनार्कीज अब अराउंड द यूरोप। वो कहता था कि मैं यूरोप को जो है मोनार्की से आजाद कराना चाहता हूं। लेकिन यही इसने एक स्पीच में बात की थी, इसने कहा था कि वी हैव टू ओवरथ्रो द मोनार्कीज को खत्म करना है, रूल ऑफ पीपल आना चाहिए, रूल ऑफ पीपल आना चाहिए। लेकिन वहीं ये बात कह देता था कि आई एम द वॉइस ऑफ पीपल, लोगों की आवाज मैं हूं। तो कहीं ना कहीं ये खुद को यहां पर एक स्टार बता रहा था, खुद को कहीं ना कहीं ये बता रहा था कि मैं ही आपका सेवियर हूं और कोई नहीं है। क्लियर? ओके, पहली बात। दूसरी बात ये था कि ये कहीं ना कहीं नेपोलियन का एक एडवांटेज था, चाहे वो पोलिश स्पीकिंग पीपल हो या आपका इटालियन स्पीकिंग पीपल हो, तो जब इनको उनसे फौज में मिलाना होता था, कहीं अटैक करना होता था, तो ये सपोर्ट करता था कि जो आपके लिंग्विस्टिक जितने भी आपके जो लोग हैं, जो सेम लिंग्विस्टिक बेस्ड पीपल हैं, उनको हम जोड़ के कॉमन कंट्री बनाएंगे, चाहे वो पोलिश के साथ हो, इटालियन स्पीकिंग के साथ। तो ये इसकी दूसरी बात थी। और कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पीपल से इसने वोटिंग का भी एक सिस्टम लाया हुआ था। भली वो वोटिंग तब हुई जब पेट्रियोटिज्म जो था आपके फ्रांस में बिल्कुल पीक पे था, जब इन्होंने ब्रिटेन को हराया हुआ था। प्लेबिसाइट एक कराता है, खुद को काउंसिल ऑफ लाइफ नियुक्त कर देता है। लेकिन ये कहना ठीक है कि कम से कम प्लेबिसाइट का सोचा तो सही। ओके, नेपोलियन फेवर्ड द राइज ऑफ नेपोटिज्म, रिलेटिव सपोर्टेड। मैंने आपको कह दिया सिसिली, नेपल्स और लेफेडर, तीनों जगह इसने अपने रिलेटिव लगाए थे। जो बोनापार्ट जो था नेपल्स एंड सिसिली में लगा हुआ था। अब इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या थी इसकी? इकोनॉमिक पॉलिसीज ये थी कि इसने इंडस्ट्री रेवोल्यूशन लाई फ्रांस में, और इसने एक नया कंसेप्ट लाया, कॉन्टिनेंटल सिस्टम लाया, जिससे फ्रांस की इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर सके, और ताकि हम जो ब्रिटिश गुड्स का ये नेक्सस हमारे इर्द गिर्द बना हुआ है, इससे हम बाहर निकले। ओके, सो कॉन्टिनेंटल सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे रशिया के जो अलेक्जेंडर II का जो रोल है, जो इससे बाहर निकलता है फिर अलेक्जेंडर, वो भी मेंशन कर दीजिएगा अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं आता है। फिर सोशल पॉलिसीज ऑफ नेपोलियन। सोशल पॉलिसीज क्या था? चर्च के रोल को इसने रिड्यूस कर दिया था,
चर्च के साथ इसने एक एग्रीमेंट किया हुआ था। इस एग्रीमेंट में ये था कि चर्च जो है वो स्टेट के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा। चर्च को जो है हम लोग जो है जो प्रीस्ट उनको सैलरीज हम लोग देंगे, यानी स्टेट देगी। और क्यों देगी? ताकि उनकी लॉयल्टी और डिसिप्लिन रहे। ये दो चीजें जो लॉयल्टी एंड डिसिप्लिन, इसके पीछे कहीं ना कहीं नेपोलियन एक फौजी आदमी था, इन दो के पीछे भागता रहा। यूनिवर्सल फ्री एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन उसने रखी हुई थी, लेकिन उसमें भी ये दो चीजें वो पढ़ाता था। लॉजिक वगैरह तो बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता था, लॉयल्टी एंड डिसिप्लिन टुवर्ड्स नेशन पढ़ाया जाता था। एक स्पिरिट ऑफ जो क्वेश्चनिंग होती है वो अभी भी बाहर थी। दस कहीं ना कहीं अगर आप इसकी सोशल पॉलिसी देखें, इकोनॉमिक पॉलिसी देखें या पॉलिटिकल पॉलिसी देखें, तो ये कहना गलती होगा कि नेपोलियन बिट्रेड द आइडियाज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, अब 1814 में आपका नेपोलियन हार जाता है, फ्रांस कंप्लीटली फिर से एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन जाता है। तो जो तीन नेशन थे, कौन कौन सी तीन नेशन थे आपके? रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और इनके साथ प्रूशिया, सॉरी 4 नेशन जो थे। अब ये 4 के 4 जो थे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्कीज थे। अब ये कहते हैं कि हम जो फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है उसको इतना स्ट्रांग बनाएंगे कि लोग जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन को भूल जाएंगे और उन्हें लगेगा कि ये मोनार्की ही हमारे लिए बेस्ट है। जो हमारा इंटरेस्ट सबसे ज्यादा जो सर्व होता है वो इस मोनार्की में ही होता है। ओके, दूसरा काम इनका यह था कि ये जो मैस्करेड की थी नेपोलियन ने, इसको साफ करना। ओके, अब एक और इनका चीज था कि जो विद इन द स्टेट पीस आए। जैसे फ्रांस था, जो आपकी छोटी छोटी मूवमेंट्स चल रही थी पोलैंड में, जैसे प्रूशिया में पोलिश पीपल की चल रही थी, और इंटर जो स्टेट इनकी, इंटर जो कंट्रीज जो इनकी पीस होनी चाहिए। और ये सिर्फ तभी अचीव हो सकता है जब फ्रांस में मोनार्की जो है वो स्ट्रांग होगी। ओके, अब इनका खर्चा भी बहुत हुआ था फ्रांस में लड़ते लड़ने। तो जो नेपोलियन ने जो टेरिटरीज एक्वायर की हुई थी वो ये लोग आपस में रिडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और प्रूशिया। तो ये जो पहला पीस, एक हिसाब से 4 कंट्रीज बैठ के, 5 कंट्रीज बैठ के एक पहला पीस का अलायंस बनाते हैं कि ग्लोबल अब इनके रीजन में पीस है, इसे कहते हैं कांग्रेस ऑफ वेना। ये प्रीडेसर बनती है आपकी लीग ऑफ नेशंस की, और लीग ऑफ नेशंस आगे चल के जो है यूनाइटेड नेशंस बनता है। ओके, सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांग्रेस ऑफ वेना। ओके, होप आप समझ पाए होंगे कि 5 कंट्रीज इंटर स्टेट, इंटर कंट्री पीस और इंटर कंट्री पीस लाना चाहते हैं। पीस के लिए कदम ये लेते हैं, और पीस के लिए यही सोचते हैं कि पीस तभी आ सकती है जब आपकी स्ट्रॉन्ग मोनार्की होगी। आपस में जो नेपोलियन की जो टेरिटरीज थी वो ये एक्वायर कर लेते हैं, आपस में एक दूसरे को बांट देते हैं, ताकि जो वॉर पे जो खर्चा आया था उसका कंपनसेशन हो सके। Okay, so that's all for this lecture. See you soon in new lecture. Thank you.